नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज कांग्रेस की बहुत बड़ी बैठक हुई। 88 नेता 4 घंटे और राहुल के साथ गुफ्तगू। राहुल गांधी ने आज मोदी एंड कंपनी के खिलाफ फाइनल प्लान बनाया और फाइनल प्लान का खुला ऐलान भी कर दिया। प्लान बनाना, प्लान को गोपनीय रखना, ये बीजेपी की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी ने इससे बिल्कुल उलट, वैसे भी सब कुछ उलट ही है, फाइनल प्लान का बिल्कुल खुला ऐलान किया। 800 शहरों में अब छात्रों की गूंज सुनाई देगी। जेनजी सड़कों पर होंगे और जेनजी के साथ राहुल का हाथ होगा। 800 शहर यानी देश का कोई कोना अछूता नहीं होगा। अब जेनजी आंदोलन से कोई कोना अछूता नहीं होगा और यह आंदोलन मोदी की माफी, हाथ जोड़कर माफी तक चलेगा और माफी के बाद तो फिर विदाई होती है। माफ कर दिया, जाओ उठाओ अपना झोला, विदाई से ही फिर मामला रुकेगा। अगर अब यहां पर इसके आगे, यहां तक तो राहुल गांधी के एंड से था, अब यहां से अगला लाइन मेरे एंड से है। डिस्क्लेमर, राहुल का ये प्लान अगर कांग्रेस इंप्लीमेंट कर पाई, एग्जीक्यूट कर पाई, तो यकीन कर लीजिए कि 12 साल से इस देश ने जो घुटन भरा माहौल देखा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। उस घुटन से हम बाहर आ जाएंगे। मुझे आखिर तक कांग्रेस पर थोड़ा यकीन नहीं हो पाता, राहुल पर यकीन होते हुए कांग्रेस पर नहीं हो पाता। ये काम 800 शहरों में इंप्लीमेंट करने का काम राहुल गांधी के अकेले के बस का नहीं है और कांग्रेस में राहुल गांधी सिर्फ अकेला ही है। यही विडंबना है, अकेले का बस का नहीं है, वो है अकेला। तो लाओ हेमंत भाई लाओ, हो सकता है मेरे विचार गलत हो, मैंने निजी विचार रखे थे। स्वागत है हेमंत भाई। मैं शुरुआत करूं, जरा एक बार पहले प्लान सुनवा दें वेणुगोपाल जी के मुखार बिंदु से, वही बता रहे हैं। तो बताइए, सबसे पहले मैंने कहा था ना कि राहुल अकेला है, कोई और नहीं है, तो एक तो यही है, उसमें सबसे पहला नाम। अगर यही आदमी सही होता, यही सही होता, तो फिर सारा बही भी सही होता। यही गड़बड़ है। लेकिन सुनिए, ब्रीफिंग तो सुननी पड़ेगी। चलाओ भाई। All of you. Today we had a detailed meeting of Congress Working Committee with the CWC members, permanent invitees, special invitees, along with our 4 chief ministers. More than 88 people, around 88 people attended the meeting. 33 people participated in the discussion, including the chief ministers and the senior working committee members. As rightly Jairam ji pointed out, we are focused on 3-4 major issues today. Number one is the issue of चलो अगला चला दो। ये यही है वेणुगोपाल, हम today we had a detailed meeting of Congress Working Committee. 88 people attended the paper leak. हाँ, The agitation which was done by the students of this country and the way in which the government of India has dealt with that agitation. The Congress Working Committee unanimously opined that the sessions which held in Lok Sabha and Rajya Sabha was 100% successful for the opposition parties.
and government was totally in a back foot on that issue. Basically, these educational issues. Rahulji's initiative on this educational issue by Chatrom Ki Gunj and their direct involvement of the agitation, especially the surgical strike on Prime Minister's house, itself created a very big atmosphere for solving the situation for the students of this country. Number two issue which we have discussed is Chanda Chori. So we are going to continue, first of all, the Chatrom Ki Gunj we are going to continue in coming days. Around 800 cities, small and medium cities, we are going to have this Chatrom Ki Gunj program. Some of this program, Rahul Gandhi himself is going to be attended. We are continuing that program. Chanda Chori is actually a serious area of concern among the people of this country. Everybody knows that Ram Mandir Chanda Chori is not only the issue of Ram Mandir now. It's become an issue of the sentiments of the people. Those who are spreading religion for polarizing the people, those who are using the Ram Mandir for polarizing the people, are now totally exposed that their idea is to polarize the people and to do the theft in the temples. Now we are going to take it up this issue also in a grassroots level. Our Pradesh Congress Committee, we are already directed, CWC directed the Pradesh Congress Committee to have a demonstration in their level, like Chopal, village level, Panchayat level, throughout the country on this issue. Third issue, we know about that Chinese incursion in Arunachal. I think these people, those who are telling about Deshbhakti, are now totally surrendered. First of all, they surrendered to America, now they surrendered to China also. Arunachal, that's what witnessed. The CWC have shown great concern. Regarding delimitation also, we had a detailed discussion. Our stand on delimitation, everybody know that we are demanding to freeze on 543 seats. With existing 543 seats, there should be a women reservation, 1/3 women reservation. The Tamil Nadu Legislative Assembly passed the resolution, all party. We are for that resolution completely. ये पूरा हमने इसलिए सुनवाया कि मतलब जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हम नहीं दे सकते हैं ना, उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। बस अब सीधा हम हेमंत भाई के पास चल रहे हैं। हेमंत भाई, मैंने शुरू में ही ओपनिंग में कह दिया था, कुछ रिपीट और नहीं करना है। प्लान तो जबरदस्त है, जोरदार है, मतलब जो इसके लिए कहलवा लीजिए। एग्जीक्यूशन के मामले में आकर के थोड़ा सा मुझे डाउट पैदा होने लगता है। हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक न रखें। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? एग्जीक्यूट हो गया तो समझ लीजिए 12 साल की घुटन तो खत्म हो गई। लोग खुली हवा में जिएंगे, अमन चैन से, गंगा जमुनी तहजीब। मुझे लगता है गंगा और जमुना भी और स्वच्छंद होकर के बहने लगेंगी। म्यूट हो आप, म्यूट। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आमतौर पर घंटा 2 घंटा ही चलती है, लेकिन जब कोई इतने बड़े इश्यूज को जब थ्रेडबेयर डिस्कस करते हो आप, तब अपने को गंभीरता का पता लगता है। आपने बताया 88 नेता थे और 4 घंटे थे। उसमें एक वैल्यू एडिशन कर दूं कि 33 नेताओं ने अपने अपने विचार रखे, बाकायदा हाथ उठा करके, 33 ऑफ देम।
ये कोई छोटी संख्या नहीं होती। आमतौर पर आपने आजकल भाजपा की देखी होंगी, दो बोलते हैं चले जाते हैं, बाकी सारे सुन लेते हैं। तो ये एक पार्टिसिपेटरी एक तरीके की मीटिंग थी। और राहुल गांधी ने आजकल जो आपने कहा ना कि ये अगर सफल हो जाए, तो देखिए सफलता असफलता के पैमाने अलग अलग हैं। इस देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, जैसा आपको पता है, और सबको मिलाओगे तो सारों में 800 या 802 जिले हैं। और इस कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम होगा, परीक्षा को लेकर के, परीक्षा चोरी को लेकर, छात्रों की गूंज के तौर पर। और इसमें राहुल गांधी भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाएंगे खुद। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ राज्यों के अंदर उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है ऑलरेडी, और उसमें बाकी राज्यों के अंदर जब ये रहेगा कि राहुल गांधी आ सकते हैं, तो एक तो सेल्फ मोबिलाइजेशन भी हो जाती है, और दूसरा पीसीसी के ऊपर भी दबाव रहता है, नंबर एक। नंबर दो, आजकल कांग्रेस पार्टी ने अपने फीडबैक सिस्टम को भी काफी अपडेट किया, अपग्रेड किया। पहले तो कांग्रेस जैसे अपन देखते थे कि पार्टी कम है और कल्चर ज्यादा है कांग्रेस, ठीक है आपने कह दिया मैंने कर दिया, थोड़ा बहुत नहीं कर दिया कोई खास बात नहीं। आजकल रियल टाइम में हर कार्यक्रम का फोटोग्राफ, वीडियोस, मोबिलाइजेशन प्लान, क्या कुछ रहा, किन किन की सक्रिय भागीदारी रही, कौन निष्क्रिय रहे, उस टाइप का सारा फीडबैक लिया जा रहा है। और सीधा वो राहुल गांधी की टीम लेती है, क्योंकि छात्रों की गूंज उनका इनिशिएटिव है। तो इसको कोई भी जो नेता है स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, वो इसको कैजुअली नहीं ले सकता। और एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी कि अभी तक लगातार कांग्रेस पार्टी के पास संगठन का बड़ा भारी संकट था कि कई कई सालों से, 10-10, 15-15 सालों से पार्टी के संगठन ही नहीं थे, ना जिला स्तर पे थे, ना ब्लॉक स्तर पे थे, ना मंडल स्तर पे थे। तो आज की मीटिंग में उसका भी रिव्यू किया गया है कि जो संगठन सृजन अभियान आपका था उसकी क्या स्थिति है। तो 77 से लेकर 55 से लेकर 77% तक वो काम पूरा हो गया है, उसकी भी डेडलाइन रखी गई। तो यानी कि जो राहुल गांधी का ये इनिशिएटिव है छात्रों की गूंज, इसको कांग्रेस पार्टी की कोई भी यूनिट, चाहे वो स्टेट यूनिट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट यूनिट हो, चाहे ब्लॉक यूनिट हो, उसको कम से कम कैजुअली नहीं ले सकते। कारण सिंपल है कि कुछ राज्यों में आपने देखा राहुल गांधी कोटा चले गए, इलाहाबाद चले गए, देहरादून जाए, अब पूना जा रहे हैं, कुछ राज्यों में जा चुके हैं वो। और ये उन्होंने आज की मीटिंग में साफ कहा कि और छात्रों की गूंज में भी मैं जाऊंगा। तो कम से कम स्टेट तो रिपीट होगा, निजी स्टेट में एक बार जा चुके हैं। तो उससे जो एक दबाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक भी, मानसिक भी, राजनीतिक भी, और एक उनके कारण जो सेल्फ मोबिलाइजेशन होता है, वो एक बड़े फैक्टर उसके अंदर है। प्लस प्रभारियों की डायरेक्ट ड्यूटी, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, चारों मुख्यमंत्री थे, उनको अपने हिसाब से बता दिया गया सारी चीज। तो कुल मिलाकर के ये एक थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद ये चीज हुई है। और आपने एक चीज देखी होगी, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और सारा हुआ, राहुल गांधी इस पेपर लीक को उससे पहले से उठा रहे थे लगातार, शिक्षा को वो लगातार उठा रहे थे। तो उसका परिणाम है कि आज छात्र आंदोलन का इतना बड़ा मोमेंटम पूरे देश के स्तर पे आप देख रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी ने 49 दिन किया, सारा किया, अपने जो लद्दाख वाले वांगचुक साहब हैं उन्होंने भी अपना एक वो किया उसके अंदर। लेकिन ये इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे शुरू से, तो राहुल गांधी का है, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, बेरोजगारी को लेके, पेपर लीक को लेके। और टू दैट एक्सटेंट के जो वो विदेश में भी थे, अगर आपको ध्यान हो, बीजेपी को विदेश का प्रचार करने का बड़ा शौक है राहुल गांधी का, उस समय वो लगातार वहां से भी इन चीजों को टेकअप कर रहे थे, चाहे वो एनटीए के फेलियर हो, चाहे सीबीएसई के हो, वो आपने लगातार देखा। उसके बाद जिन बच्चों ने अपनी जान ले ली खुद ही, उन बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन, यहां तक कि तमिलनाडु जाकर के भी बहुत सारे नेता तो उस मुद्दे की जिक्र भी करना नहीं चाहते जो सत्ता में, जिक्र करने की बात कर रहा हूं, बात करना, संवाद करना तो भूल ही जाइए। राहुल गांधी तमिलनाडु जाकर के उन लोगों से मिले, उनके परिजनों से यहां पर मिले, और यूथ के साथ कनेक्ट किए। वो देखिए आप उनका कि अंकिता भंडारी, जो बेचारे उनके जो परिजन इतने साल से धक्के खा रहे हैं, उनको भी अपने घर पे अब इस बार मिले वो। तो ये सारी की सारी स्थिति यूथ कनेक्ट आज की तारीख में वो कर नहीं रहे, यूथ उनके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उल्टा है। आपने छात्र आंदोलन में देखा होगा, हॉस्पिटल में वो गए, घर पे बुला के वो मिले, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये एकदम नया इनिशिएटिव है, और ये उसका व्यक्ति का पर्सनल है बतौर विपक्ष का नेता, शिक्षा से लेकर के साथ। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज आपने देखी होगी वो है झारखंड के आंदोलन को समाप्त कराने में जो उनकी प्रोएक्टिव भूमिका रही। छात्रों से बात करने से लेकर के, जो घायल थे उनसे बात करने से लेकर के, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने से लेकर के, रांची के बच्चों का इशू उठाने से लेकर के, और मामले के फाइनल कल्मिनेशन तक, ये कोई एक छोटी चीज नहीं। और जो हम जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर राहुल गांधी क्या इनिशिएटिव लेते हैं इन मुद्दों पे, वो भी एक बड़ी चीज होगी।
तो कुल मिलाकर के यूथ का जो जितने भी कॉजेज हैं, चाहे वो शिक्षा है, बेरोजगारी है, फला है, जो भी, उन सबको चैंपियन करने वाला व्यक्ति पॉलिटिकल सर्कल में अगर आप देखेंगे तो इकलौता है। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से तेजस्वी ने पटना के अंदर वो किया। मेरा सवाल यही था हेमंत भाई कि वो इकलौता है। मेरा सवाल यही था कि वो इकलौता है। ये जो कार्यक्रम, जो प्लान बना है, ये इकलौते का प्लान नहीं है। ये टीम, इसका एग्जीक्यूशन टीम करेगी। टीम कहां से आएगी? मेरा सवाल ये है। आपने एक बात कही थी कि ब्लॉक यूनिट, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, ये सब इसको लाइटली नहीं ले सकते। मैं पूरे यकीन से बता रहा हूं आपको, और बहुत ग्रास रूट लेवल पे, हम तो दिल्ली आईसीसी तरफ आज तक झांके नहीं, हमको पता भी नहीं है कि कांग्रेस दफ्तर में गेट कितना चौड़ा है। न किसी नेता से मिलने जुलने मेरा कोई रुचि मेरी आज तक रही। मैं ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसियों को जानता हूं। मेरे लिए वही नेहरूवादी हैं, वही सब नेहरूवियन हैं और गांधीवादी हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो नॉन सीरियस हो। वो बहुत, आज भी मैं तो कई बार जाता हूं तो ऐसे से मिलते हैं, सेवा दल है, कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, आप दिल्ली में कुछ बताओ उन लोगों से कि हमसे संपर्क हम लोगों से करें। मतलब उनका है नहीं कि हमसे संपर्क करें, बुलावें, हमको चाय पिलाएं। मतलब हम लोगों को कहीं काम में लगावें, काम में लगा हुए हैं, ये कहने का मतलब है। इसलिए इस बात को मैं ला रहा हूं। जब हम कांग्रेस पर चर्चा कर रहे हैं तो फिर कहा कि राहुल को अब अलग करके हम बात करेंगे, क्योंकि राहुल तो सब अकेला कर ही रहा है। जो आदमी, उसको लेकर के हमें बात नहीं करनी है। इतने बड़े प्लान पर मुझे कांग्रेस की बात करनी है। तो वो कहते क्या है? कहते हैं हमको काम में लगाओ, हमको कोई काम दें। काम कौन देगा? ब्लॉक यूनिट, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, यहां काम करने वाले हैं। समस्या खड़ी होती है दिल्ली यूनिट पर, मतलब दिल्ली यूनिट नहीं, जो सेंट्रल यूनिट है एआईसीसी, वहां पर, और स्टेट यूनिट पर। ये दोनों यूनिट, इन दोनों यूनिट को कहीं पर भी, आप हरियाणा में रहते हो, आप हरियाणा से ले लो, किसी स्टेट की बात जहां कह दो करने के लिए मैं बताऊं। एक स्टेट यूनिट है जो सबसे एक्टिव है आज की तारीख में, मध्य प्रदेश वाली स्टेट यूनिट, जो जीतू है। वो राहुल की तलाश जैसे भी जहां से आया हो, जब अध्यक्ष बनाया गया तो हमें भी बहुत हजम नहीं आया कि पता नहीं कैसे बना दिया, लेकिन उसने प्रूफ किया। एक स्टेट यूनिट है जिसका प्रदेश अध्यक्ष कहीं भी नजर आ जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में कुछ भी हो, उसका स्टेट यूनिट, मतलब उसका स्टेट हेड वहां पर खड़ा नजर आता है मौके पर। कार्यकर्ताओं से, चाहे वो डांट खाए या कार्यकर्ताओं डांटे, उसे जूझ रहा है। बाकी स्टेट यूनिट में कुछ हद तक अजय राय उत्तर प्रदेश में, बकिया स्टेट यूनिट मुझे बता दो आप कि किस स्टेट यूनिट का अपने प्रदेश में ग्रास रूट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना संवाद है, कितना कोऑर्डिनेशन है। और मैं ऐड कर दूं, इसलिए मैं कह रहा कि आप भी उसको देख रहे हो करीब से और हम भी देख रहे हैं। दूसरी, संगठन सृजन की बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा नेताओं को, नहीं तो उनका क्यों पता चले कहीं किसी हमारे चक्कर में आपस में बैन हो। टॉप लीडर कांग्रेस में, टॉप लीडर मतलब जो अलग अलग मोर्चे हैं, एक मोर्चे तो नेशनल प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालने वाली, कभी वाली वाला जो भी हो, छोड़ी, नहीं तो कम से कम हम चॉइस कम कर देंगे तुक्का मारने लोगों को। संगठन सृजन में किसी प्रदेश में भेजा गया था। अपने कानों का आमने सामने, अपने कानों मैंने सुना संगठन सृजन, इतने दुख के साथ बताए कि ये क्या करेंगे। हम गए वहां पर, कोई जो कमांड एंड कोऑर्डिनेशन है, दोनों सिस्टम चोक है, खत्म है। वो अकेला राहुल जी, मैंने बड़े उससे वो भी कि अकेले राहुल जी क्या क्या कर लेंगे। राहुल जी का काम नहीं है ये संगठन सृजन को दुरुस्त करना, ये राहुल जी का काम नहीं है। राहुल जी जो कर रहे हैं वो उनका काम है। राहुल कांग्रेस का फेस ही नहीं है। राहुल जनता से कनेक्ट किया है, जनता जिसको चाहती है वो चहेता है जनता का, तो वो जनता के बीच जाएगा ना, कि वो संगठन सृजन का बैठ करके जोड़ घटाना करेगा। मैं यहीं पे बार बार कांटा मेरा अटकता है कि ये लोग, जिसकी जिम्मेदारी संगठन सृजन, जिम्मेदारी किसकी है? ये एआईसीसी में बैठे हुए महानुभावों का है ना, जो एक से एक तीरंदाज बैठे हैं, 30 मार खां, उन 30 मार खां का है ना। लेकिन वो 30 मार खां, वो 3 मार खां भी नहीं रह गए हैं
27 कम कर रहा हूं, 3 मार्का भी नहीं है। सब के सब खाली कोशिश, जब राहुल गांधी देखो तो एकदम तैनात हो जाओ, हम कर देंगे, यहां कर देंगे, वहां कर देंगे, देश भर से इंडिया पलट कैसे कर देंगे, दक्षिण का उत्तर कर देंगे, उत्तर का दक्षिण कर देंगे। मैं इसलिए करूं, मैं देखिए बहुत कड़वी बात जो है, सुनना हो कांग्रेसी सुने, नहीं सुनना हो ना सुनो। इसलिए मैं कहा राहुल को मैं अलग कर रहा हूं, राहुल के एफर्ट में मैं कभी उंगली नहीं उठा रहा हूं। जहां पर राहुल की कमी लगती है मुझे, तो हम लोग आदमी हैं और हमारा काम है पत्रकार के रूप में, तो राहुल को भी, लेकिन राहुल के एफर्ट में मुझे नहीं कमी नजर आती। वो आदमी लगा पड़ा है, साथ वालों को देख लो, मैं अब नहीं नाम ले रहा हूं, संगठन सृजन के सबका एक एक कुंडली खोल दू नाम बता के, किस प्रदेश में किसको भेजा गया और क्या देख के आए। आशीष भाई, आपकी एक बहुत खराब आदत है, खराब तो मेरी भी है, मेरी आपसे ज्यादा ही है, कि हम दुख तिरक को छेड़ने में बड़ा भरोसा रखते हैं। ठीक, तो दुख तिरक कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी है उनकी स्टेट लीडरशिप्स। किसी भी स्टेट के अंदर आप चले जाइए, और जब स्टेट का टॉप खराब होगा, टॉप बटा हुआ होगा, नीचे तक डिजायर्ड इफेक्ट नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी ने जो गुरु एक चीज खाली बच्चों, एक चीज बस यहीं पे एक सप्लीमेंट्री जोड़ दूं, ये स्टेट यूनिट जो है, जो स्टेट लीडरशिप है, इसको अगर हम इस पे उंगली उठाएंगे तो दिल्ली में बैठे एआईसीसी के जो 30 मार्का हैं, इनको हम कतई किनारे नहीं रख पाएंगे। अगर उनको हम कहेंगे मक्कार, तो ये परम मक्कार, चरम मक्कार कहे जाएंगे। नहीं, मैं वो पूरी बात उस पर आपका आऊंगा उस पर, क्योंकि कांग्रेसी मैंने इतने साल कवर की है कि मतलब बेसिकली क्या है कि स्टेट लीडरशिप के अंदर जो कोटे सिस्टम कर रखे हैं ना, कि आशीष चतुरांशी बस्ती के, तो बस्ती का टेंडर तो सारी उम्र के लिए उनके नाम है, नहीं तो उनके लड़के के नाम है या उनके परिवार के नाम। जो नया ब्लड इन्फ्यूज करने की बात राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस पार्टी में उसका स्कोप नहीं। हालांकि उन्होंने, देखिए मैंने आपको ओपनिंग में कहा, शायद आप चले गए थे, फीडबैक का सिस्टम इंप्रूव किया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी चीजें हुई, सब चीजें अपनी जगह। लेकिन जब तक आपके पास फ्रेश ब्लड नहीं होगा, आपने जीतू पटवारी का जिक्र कर दिया मध्य प्रदेश का, वो एक अदद उदाहरण है कि स्टेट का प्रधान कैसा होना चाहिए। कहीं कोई मुद्दा हो, सबसे जाकर के खड़ा हो जाए, सबसे आगे। इंदौर के पानी से लेकर के सारी चीजें आपने हर देखी, जगह है जहां भाई। भी कोई कांग्रेस पार्टी का मतलब आंदोलन की पार्टी है, सत्ता की पार्टी नहीं। और वो सत्ता की पार्टी होगी, इसीलिए वो ये दिन झेल रही है, ये मान के चलिए आप। नंबर एक। नंबर दो, जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी, वहां के जो दिग्गज हैं, कितनी उम्र हो उनकी, पहली बात तो वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं, अपनी पोजीशन को, कि कोई नया व्यक्ति आ जाए, एक खुद कुछ करेंगे नहीं। और कांग्रेस के पास जो स्टेट्स के अंदर लीडरशिप है, और जिन राज्यों में उनकी कभी सत्ता थी, 70 से 75% लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। कहीं सीबीआई है, कहीं ईडी है, आपने लगातार देखा, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ को बीजेपी ने छोड़ रखा है कांग्रेस में। एक बड़ा लॉट है, एक बड़ा लॉट है जिसको कांग्रेस में छोड़ रखा है बीजेपी, वरना जब चाहे बुला ले। लेकिन वहां पे उसके रखने की ज्यादा यूटिलिटी है, चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो, चाहे रीजन के हिसाब से हो, चाहे पॉलिटिकल रणनीति के हिसाब से हो। उस सब के बावजूद भी देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक है वो दुखती रग, जिसका आपने जिक्र कर दिया, वो पार्ट रहेगा, उसका कोई इलाज है नहीं। मैंने आपको सैकड़ों बार बात की कि आशीष भाई, जब तक राहुल गांधी सर्जरी पे नहीं आएंगे, डायग्नोसिस का सबको पता है, बीमारी सबको पता है, डायग्नोस में सर्जरी है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत रहेगी। एक दूसरा, सेल्फ गोल क्या होता है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता हूं, आपने शायद नोट नहीं किया। राहुल गांधी का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फंक्शन था अभी, जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे कांग्रेस से, उस प्रोग्राम का सत्यानाश किसने किया? आयोजक ने, रचनात्मक कांग्रेस के मुखिया ने एक दो शब्द कह करके, 3-4 शब्द थे शायद, वो मेलोनी समझ के तो नहीं, शायद यही थे, 5 शब्द, तो सारी के किराए का पोचा मार दिया उसके ऊपर। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, क्योंकि आपको पता, मैं तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखता हूं। आज क्या कहा, जो अपना ब्रीफ कर रहे थे श्रीमान वेणुगोपाल, छूटते ही उन्होंने कहा पहले 2 मिनट के अंदर कि पीएम के आवास पर सर्जिकल स्ट्राइक। बीजेपी इसी को पकड़ेगी, बीजेपी को इस सारे से कुछ लेना देना नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा दुश्मन पे किया जाता है और उसका नेगेटिव ओवरटोन होता है। आप शब्द चुन रहे हो, उसकी गरिमा भी ध्यान रख लीजिए। तो अगर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये शब्द प्रयोग करता है, जिसको इतनी शब्दों की सूचिता का मतलब नहीं पता, महत्व का मतलब नहीं पता, उनकी सेंसिटिविटीज का मतलब नहीं पता,
तो इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस सीडब्ल्यूसी पे बीजेपी अगर चाहेगी, हालांकि बीजेपी अभी कंप्लीटली बैकफुट पे है, उनको सूझ नहीं रहा कुछ भी, लेकिन इस शब्द की ओवरटोन देखिए आप, कि राहुल जी का पीएम आवास पर सर्जिकल स्ट्राइक। राहुल जी ने तो नहीं कहा, राहुल गांधी नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा। तो केसी वेणुगोपाल ने उनको एक ब्रोबीट करने के लिए एक शब्द दे दिया। इज इट रियली रिक्वायर्ड? रचनात्मक कांग्रेस का कितना शानदार वो था, बीजेपी के पास उंगली रखने की जगह नहीं थी। आरएसएस के मुंह से आज तक एक शब्द नहीं निकला, याद रखिएगा इस बात को। इलाहाबाद में उन्होंने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंटेशन में मोहन भागवत का फोटो अपनी प्रेजेंटेशन में लिया स्क्रीन पे। आरएसएस के मुंह से आज तक जवाब निकला नहीं निकला। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो कार्यक्रम था, राहुल गांधी का एक एक शब्द महत्वपूर्ण था। ठीक, उन्होंने उस एक एक्ट से के अग्लोमेसी क्या होती है पूरे देश में लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया, और अगले ही फ्रेम में क्या हुआ वो आपने देखा। तो ये जो आत्मघाती दस्ता मैं कहता हूं, इसको भी आप उतनी गंभीरता से लिया कीजिए कि करे कराए पे पानी कैसे फेरा जाता है, ये कोई कांग्रेसियों से सीखे। आउट ऑफ टर्न जाके बोलना क्या मतलब है? एक चीज थी, ये मैं और आप भी समझते हैं कि विजुअल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है विज विज स्पोकन वर्ड। राहुल गांधी एग्लोमेसी कहते, आधे देश को समझ में आती, आधे नहीं। मोदी की विदेश नीति जब यूं करके दिखाई तो पूरे देश ने कनेक्ट किया। मैं एक लाइन की बात इसमें करता हूं, ये राहुल को जो कहना है, गलत सही, जो राहुल को एक्सेप्ट देश कर रहा है, जितना कर रहा है वो कर लेगा। उसमें संदीप दीक्षित को मस्खरी करने की जरूरत करके उसमें कि हम उछक के आए कैमरे फ्रेम में मस्खरी करने, वो अनवांटेड था। आज हाँ, और आज जैसे शुरुआत किया, ये मतलब अपना एग्रेशन दिखाना या कुछ भी बोल देना, ये इनके लिए भी अनवांटेड था, वेणुगोपाल के लिए। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। जितना एग्रेशन होना चाहिए वो राहुल गांधी में है, वो राहुल गांधी उस एग्रेशन से अपना काम कर रहा हो, और उस दायरे में है। आपका जो अपना काम हुआ आप कर लो। वही फिर भाजपा सरकार जैसे काम कर रहे हो कि प्रधानमंत्री अपना काम नहीं कर रहा, गृह मंत्री अपना नहीं, कोई अपना काम नहीं कर रहा, सब दूसरे कर रहे हैं। वैसे ही आप राहुल गांधी को मौका मिला कैमरे, तो राहुल गांधी काम करने लगे। वेणुगोपाल के लिए कुछ काम अलॉट है, वो वाला काम कर लो, ठीक है। वो 55 से 70% हुआ है अभी तक। हाँ, वो कुछ नहीं, 55% भी फर्जी है। अब मैं कह रहा हूं, नहीं कहूंगा, नहीं तो मैं कांग्रेसियों को दिल दुखेगा। आप कहते ना, हमको किसी का दिल खुश करने के लिए, मेरी तो देखो बहुत सीरियस बात है, मेरी दुकान ही ऐसी है जिस पर कस्टमर काउंटर तक आता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि दुकान खोल बैठे न्यूजीलैंड, बहुत सारे आते हैं भक्त, कहते हैं दुकान खोल बैठे। हमारी दुकान पर काउंटर पे कस्टमर आते नहीं है, वो चाहे कांग्रेस वाला हो चाहे कोई भी। कभी देखा, आज तक आप लोगों ने देखा है कि किसी कांग्रेस के हैंडल पर किसी का भी गुमनाम का अनजान के चैनल के क्लिप्स आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पर लगाए जाते हैं, कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी या सबके। भाजपा तो कोई लेना देना नहीं। न्यूज लॉन्चर देश भर में बहुत प्यार मिल रहा है, हमें पता है, और हम उस पर सेटिस्फाई हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड। आज तक कभी देखा कि कहीं न्यूज लॉन्चर की क्लिप किसी ने लगाई हो? मजाल नहीं लगाने, लगा दिया जिसने उसकी नौकरी चली जाएगी कि अरे यार ये पगलों को लगा दियो, या हमें भी नहीं बख्शते। ऊपर तक झंडे पे, ऊपर तक डंका बजता है। मुझे फोन करके कहते हैं कि आपने आशीष चित्रांशी के साथ शो में ये किया, आशीष जी ने ये किया। मगर तू क्या चाहता है भाई? बोला जी कहना नहीं चाहिए था। मैं कहा क्यों नहीं कहना चाहिए था भाई, ये बता दे, कुछ गलत कह दिया? बोला नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं देश की भलाई। देश की भलाई तब है जब विपक्ष मजबूत होगा। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। विपक्ष कब मजबूत होगा? बगैर कांग्रेस विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता है, यह अंतिम सत्य है। क्योंकि पैन इंडिया पार्टी सिर्फ कांग्रेस है, बाकी पॉकेट पार्टीज है। कांग्रेस कब मजबूत होगी? जब कांग्रेस वाकई जमीन पर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। राहुल गांधी निभाएगा नहीं। कई लोग राहुल गांधी और कांग्रेस को मिक्स कर देते हैं। राहुल गांधी अपनी भूमिका निभा रहा है, फिर कह दूं कांग्रेस अपनी भूमिका, कांग्रेस नहीं निभा रही, और कांग्रेस न निभाने की वजह है ऊपरी लेयर। आशीष भाई आज माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। पहली बार, इस पूरी बीमारी का एक हल है। अगर कोई कांग्रेसी भाई सुन रहा हो और गुड सेंस प्रिवेल्स, कि कई बार क्या होता है कि आप ढलान पे होते हो तब कुछ सर्जरी करने चल पड़ते हो, उसका नुकसान हो जाता है।
सर्जरी कब की जाती है? जब आदमी परफेक्टली फाइटिंग फिट हो, सारे उसके पैरामीटर्स फिट हो, तब की जाती है। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस मेहनत के कारण ऊपर की तरफ है, चढ़ाव की तरफ है। बिल्कुल। और राहुल गांधी के पास अपने कैरियर का ये दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये सर्जरी कर डालने की। ये जो कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय शत्रप रजिस्ट्री करा के बैठे हुए, कुछ ने तो पार्टी की गिरदावरी करवा रखी अपने नाम, अपने कुनबे के नाम, उनकी गिरदावरी फाड़ने का ये सबसे बेहतर मौका है। जीतू पटवारी जैसे नए लोगों को लेकर के आए, ऊर्जावान को, कमिटेड को, विदाउट बैगेज, जिनके ऊपर सीबीआईडी ना हो, जो कमिटेड हो, जिनके अंदर काम करने की जील हो, आगे बढ़ने का उत्साह हो। राहुल गांधी के लिए जितना ये कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है ना, छात्रों की गूंज से लेकर के, चढ़ावा चोरी से लेकर के, शिक्षा सुधारों से लेकर, उतना ही जरूरी है कांग्रेस पार्टी की सर्जरी। और ये बेस्ट मौका है इस समय, क्योंकि पार्टी ऊपर की तरफ है और फाइटिंग फिट दिखने लगी। आप कुछ भी कोई कहता रहे, आज की तारीख में मोदी और शाह सो नहीं पा रहे, हकीकत है, नहीं सो पा रहे भाई। तो उस स्थिति में राहुल को पहला मौका क्या करना चाहिए कि जो भी ये जो अपना बैगेज उठाए फिर रही है ना कांग्रेस दशकों से, उनसे मुक्ति पा ले। बड़े स्तर पे तो जो मौका परस्त थे कुछ तो भाग गए, सारे मुख्यमंत्री बन चुके, 5 तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बढ़ा दिए बीजेपी ने, देखे होंगे ना आपने, राव इंद्रजीत, किरण चौधरी, वो भजनलाल का लड़का वो कुलदीप बिश्नोई, उसके बाद हाँ, उसके बाद एक वो क्या नाम था उसका, चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, सारे मुख्यमंत्री बन के रिटायर होके पेंशन ले रहे, सबकी कर दिया क्या। ठीक, ऐसे कुछ तो चले गए, और कुछ ऐसे अभी भी है कांग्रेस में जो बीजेपी ने छोड़ रखे हैं। राहुल गांधी एक बार ब्रूटली अगर ये सर्जरी कर दे एज ए प्रोफेशनलिस्ट सर्जन, तो कांग्रेस पार्टी का दोबारा चढ़ाव होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर इनको नहीं किया तो फिर वही रिजल्ट होगा कि जीती जिताई सरकारें बीजेपी की बढ़ती दिखाई देंगी आपको। नहीं, ये वो मौका है बिल्कुल कि चढ़ती कला में हो आप, अब कर डालो, बिल्कुल कर देना चाहिए। और आज तो मुझे बहुत कम समय, पता नहीं चला 30 मिनट कब बीत गया, बहुत कम समय, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जहाँ पॉइंट वाइज। अब हेमंत भाई ने कहा कि जिन पे बैगेज ना हो, ईडी सीबीआई, इसमें भी दिक्कत है। बिना बैगेज वाला महाराष्ट्र में चुना था हर्षवर्धन सपकाल। एक आप लोग के अंग्रेजी में कोटेशन है ना, गुड फॉर नथिंग। हाँ ऐसे तो बहुत है, बहुत। चुना था कि उस पर कोई बैगेज नहीं था, चुना था, तो हमने इस चीज को हाईलाइट किया था कि उसको इसीलिए चुना कि उस पर ईडी सीबीआई कुछ भी नहीं है, तो उसका कोई कुछ बाले नहीं बाका कर पाएगा। लेकिन वो गुड फॉर नथिंग है, वो गायब रहता है, वो कोई एनआई पीटीआई का आईडी मुंह पे लग जाती है तो बोल देता है, नहीं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन सा संघर्ष आप देख रहे हो बाकी जगह। अब अंतर क्या होता है? अंतर में आज कार्यक्रम में बहुत बार नाम आ गया जीतू का, हमारा ही चैनल है और थोड़ा हम लोग के शब्द भी ब्लंटली बोलने की आदत है, तो कई बार लगता है कि वाकई थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जीतू का अध्यक्ष बनाया गया था हमारे ही चैनल पर, हम भाव सब वैसे ही बोलने वाले छिछोरा जीतू को बोलते थे शुरू में, कि छिछोरे को अध्यक्ष बनाया, ये शब्द है। और जीतू का मतलब मैसेज मेरे सामने, हम भाव बैठे थे, आया कि मुझे ऐसा बोला आपने, छिछोरा बोलते थे। कोई हमें पैसा पहुंचाया आज तक? तो पूरे देश में इकलौता आदमी कोई खोज कर ले आओ जो आशीष चित्रांशी की चौनी दिया हो। एक आदमी खोज कर ले आओ, पत्रकारिता छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा न्यूज लॉन्चर, ऐसे डंक के चोट पे कहते हैं। एक खोज कर ले आओ चौनी देने वाला, और सारे मिलके खोज लें, भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, आप या सब मिलके खोज लें। तो आज जीतू काहे तारीफ करने लगे? क्योंकि हमें दिखता है, और जो दिखता है हम वो बोलते हैं, उससे फिर कोई रोक उक नहीं सकता। वो जो देखेंगे वो बोलेंगे। कार्यक्रम आज बहुत कम वक्त हमारे पास। आशीष भाई, इसमें समस्या एक और भी है। ये जो कोटा सिस्टम तो अपनी जगह है, जो ऐसे लोग जो हुआ गुड फॉर नथिंग, मुझे आप एक चीज समझाइए, मैं अपना विधानसभा का चुनाव 3 बार हार चुका, 3 बार, और मुझे आप प्रदेशाध्यक्ष बना दो तो पार्टी का तो सत्ता में वापसी तय है ना। कोई रोक देगा? जबरदस्त। और ये चॉइस किसके टाइम पे हुई? राहुल गांधी के टाइम पे। हरियाणा का उदाहरण देखिए आप, हरियाणा में राव नरेंद्र कितने चुनाव हारा है और कितने जीता है, आप कल्पना कर सकते हैं? अरे उसके तो हम गिनती उसी दिन करवाए जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना। हैरत है, हैरत है। 14 नहीं, सुन लीजिए 2014, 2019 और 2024 लगातार 3 चुनाव हारने वाला आदमी अगर हरियाणा का अध्यक्ष है, तो भाई साहब ये चॉइस तो आपको ईमानदारी से वास्तव में बधाई के पात्र हो आप।
अगर ऐसे अध्यक्षों के सारे आप प्रदेशों में आंदोलन करना चाह रहे हो, सत्ता में वापसी करना चाह रहे हो, बढ़ाते रहे राहुल गांधी ने जो माहौल बनाना है, ये हो जाएगा काम। वही बात प्रदेश मैं कह अध्यक्ष, रहा था प्रदेश कि ये अध्यक्ष की 800 सेंसिटिविटी क्या होती है? उसकी प्रेजेंस, पेन स्टेट, उसका फाइटर इंस्टिंक्ट। मैं अपना यूं ही ढीला ढाला रहा हूं, आशीष चित्रा जी बोले भाई शो कर ले, मैंने कहा रुको यार कर लेते हैं शाम तक, तो चल गया चैनल भाई। आज जो बात की, इस पे हम सवाल किया, 800 शहर में आप करोगे, आप हर्षवर्धन सबकाल 800 शहर लायक हैं? नरेंद्र 800 शहर लायक है? नहीं है। ये सब 8 शहर लायक नहीं है। इनका कहीं आता है कि आज इन्होंने मार वो कर दिया? वो तो एक दो प्रोटेस्ट हम देखे भी जिसमें वाटर कैनन में उसको एक दो कार्यकर्ता चोट लगी थी, तो दीपेंद्र और ये सब थोड़ा उसमें आए कूद काल करके, तो थोड़ा एनर्जी। प्रदेश अध्यक्ष वहां भी मुझे नजर नहीं आया था, प्रदेश अध्यक्ष वहां भी नजर नहीं आया कि राव नरेंद्र वहां पे था लाठी खाते हुए, 5 लाठी खाया था। अरे 5 अगर खाया होता तो हम 10 बता देते। अरे आता तो पहले, नजर नहीं आया। चलिए इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि कार्यक्रम लंबा और हमारे पास वक्त इस कार्यक्रम में कम लग रहा है, तो हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। पार्ट 2 के लिए आप इंतजार करिएगा, लेकर आएंगे, ढंग से इस पे चर्चा करेंगे ताकि कान तक जा पाए कहीं ऊपर अगर गुंजाइश हो तो। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।